तो चमत्कारी बच्चों कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में दूसरा वीडियो लेकर के आए। आज जिन टॉपिक्स की हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक्स हैं आइसोथर्मल सरफेस, टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड द नेक्स्ट वन इज थर्मल रेजिस्टेंस, है ना। जिसकी बात मैंने प्रीवियस वीडियो में की थी कि थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है वो हीट के फ्लो को रोकता है या हीट के फ्लो को कम करता है, और वो बॉडी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो भी हम लोग आज देखेंगे। और जो टॉपिक्स हैं जिनकी हम बात करेंगे वो टॉपिक्स है हमारे पास में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो अलग अलग टॉपिक्स हमारे पास में आज डिस्कस करने के लिए, न्यूमेरिकल भी आज हम लोग देखेंगे। तो फटाफट आते हैं, टॉपिक लगाते हैं, है ना। क्या टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है ना। टॉपिक्स, चीज टॉपिक्स। तो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट? फर्स्ट टॉपिक इज थर्मल रेजिस्टेंस, है ना। थर्मल रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट टॉपिक इज थर्मल रेजिस्टेंस, सेकेंड टॉपिक इज आइसोथर्मल सरफेस, आइसोथर्मल सरफेस, एंड द थर्ड वन इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। थर्ड वन इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये टर्म्स क्या होती हैं, है ना, इनके कंसेप्ट्स के बारे में समझेंगे। देन उसके बाद में सारे टॉपिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास में दैट इज व्हाट? थर्मल रेजिस्टेंस। फर्स्ट टॉपिक इज thermal resistance. So thermal resistance. Okay, now talking about this particular topic, thermal resistance. What is thermal resistance? तो thermal resistance क्या है इसकी बात करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है thermal resistance. So as per the definition of book, it is the ratio of temperature difference. It is the ratio of temperature difference between the ends of a rod, conducting rod definitely, and the rate of flow of heat. क्या बोल दिया सर आपने? कुछ समझ में नहीं आया, सर, कुछ भी समझ नहीं आया। नो प्रॉब्लम, सर इज देयर, नो प्रॉब्लम इज देयर। ओके, नाउ जस्ट सी, बेसिकली जस्ट इसका ऑपरेशन करते हैं। बेसिकली क्या लिखा हुआ है? इट इज द रेशियो, फर्स्ट थिंग इट इज द रेशियो, ओके, ऑफ व्हाट? टेम्परेचर डिफरेंस। इट इज द रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन व्हाट? बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड, ओके, एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। सो लेट अस से आई एम हैविंग a rod here. So this is the rod, okay, and the rod is getting the heat from this side. This is side A, B, and this side A is providing, I am providing heat from this side, है ना, by some source of heat, like let us say burner is here, okay. So what will happen? Obviously the temperature of this side, A side, will be greater than the temperature at second side, that is B side, obviously. So T1 will be greater than, and the heat greater than T2, and the heat will obviously flow from higher temperature to lower temperature. This will be the direction of flow of heat from A to B. And let us say the time for flow of heat is T. Time is T for which it is flowing. So what can I write? The thermal resistance that is denoted by R is the ratio of temperature difference. It means higher temperature minus lower temperature divided by rate of flow. बच्चा पार्टी, rate of flow means क्या हुआ कि flow of heat per unit time. It is means Q by T. So what can I write? Can I write something like this? Q by T, है ना? Q by T. So what I will get? I will get R is equal to T1 minus T2 into T by Q. This is the basic formula. This is basically the formula of thermal resistance. This is the formula of thermal resistance. Okay, sir. Clear. This is the formula of thermal resistance. Now, tell me the unit. If we will talk about unit, what will be the unit? What will be the unit? Unit क्या हो जाएगी? Unit क्या हो जाएगी? For temperature, what do we write? Degree Celsius. For time, what we will write? Second,
एंड फॉर हीट व्हाट विल राइट, जूल, है ना, जूल. फॉर हीट इट इज जूल इफ इट इज इन SI unit. If it is in SI unit, the same thing will be in CGS unit. How can I write it something like this? क्या हो जाएगा अगर हम इसे CGS unit में रखें, किस तरीके से लिख सकते हैं, है ना? So degree Celsius, write it like degree Celsius, no problem. And then second is here, no problem. Second भी इसी तरीके से लिख सकते हैं. जूल जो है वो SI यूनिट है हीट की. सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट है कैलोरी. सीजीएस यूनिट क्या है? कैलोरी. सो यहां पे दो तरीके से लिख सकते हैं. अब देखिए एक और तरीका है जिसमें इस यूनिट को हम लिख सकते हैं. और अगर मैं बात करूं आपसे कि पावर क्या होता है, पावर, वर्क अपॉन टाइम, एंड द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, जूल पर सेकेंड, तो क्या जूल पर सेकेंड पावर होता है? और पावर की जो यूनिट होती है, एक और यूनिट, वो क्या होती है बच्चा? वॉट. क्या होती है? वॉट, है ना. एक और यूनिट क्या होती है? वॉट होती है. क्या सर? वॉट सर. यस सर. सो जूल अपॉन जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड. तो कैन आई राइट इट समथिंग लाइक दिस, डिग्री सेल्सियस पर वॉट, डिग्री सेल्सियस पर वॉट. यस सर. जूल अपॉन सेकेंड है ना, we can write it something like this. Okay sir, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. And what is the relation between the calorie and joule? Calorie and joule, it is 4.2 joule. 1 calorie is equal to 4.2 joule. ये पता होना चाहिए हमें, कन्वर्जन, है ना. आ जाए यहाँ पे. क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं? क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं? यस सर. क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं? हाँ सर. क्या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यस, डायमेंशनल फॉर्मूला. Yes, dimensional formula. What will be the dimensional formula? Yes. So just see here. Just see here. What will be the dimensional formula? Okay. From here, this is T1 minus T2. For temperature, what do we write for temperature? It is Kelvin. For T second, what do we write? T over here. For heat, what is the dimensional formula? Heat. mL2 T माइनस टू mL2 T माइनस टू. ये वही फॉर्मूला है जो हमारे पास में वर्क का है. ये वही फॉर्मूला है जो हमारे पास में जूल का है. वही फॉर्मूला है क्योंकि एनर्जी की फॉर्म है, थर्मल एनर्जी है तो एनर्जी, तो सेम फॉर्म आएगा mL2 T माइनस टू. सो फाइनल क्या बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला? क्या फाइनल बनेगा? mL2 माइनस वाला ऊपर जाएगा m. अच्छा सर, तो फिर ये भी माइनस का होगा. m माइनस वन, हाँ सर, m माइनस वन, l माइनस टू, देन t ऊपर गया 1, तो t1 पॉजिटिव हो जाएगा ना भाई, ये माइनस टू है, ऊपर गया प्लस का 2 हो जाएगा, तो इसके साथ में 8 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, t3 एंड k. m माइनस वन, l माइनस टू, t3 k. दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना. इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम सर. बिल्कुल सर, आ जाए. तो ये हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया. ये हमारे पास में इसकी यूनिट्स हो गई, है ना. चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, आपने थर्मल रेजिस्टेंस बताया. तो सर एक बात आपने देखी है, नोटिस करी है, अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं, हमने 10th क्लास में पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर. सर वापिस आप इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए. V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाय आई. क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू, क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? क्या वोल्टेज पे डिपेंड करती है? क्या वोल्टेज पे डिपेंड करती है? नहीं. क्या करंट पे डिपेंड करती है? नहीं. ये हमने पढ़ा हुआ है. रेजिस्टेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? R इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट? रो L अपॉन A. लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा? 1 अपॉन A, मीन्स एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ये बात हो गई इलेक्ट्रिसिटी में. जो रेजिस्टेंस होता है वो हमें ये पता है कि वो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, उसका होना ना उसका होना करंट पे डिपेंड करता है. वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर की डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है.
है ना, और उसके नेचर पे डिपेंड करता है। जो रेजिस्टिविटी होती है रो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये हमें पता है, ये हमें पता है ना, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मगर कहीं से कहीं तक भी वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ना वो करंट पे डिपेंड करता है। सिमिलरली सेम टू सेम डिक्टो, यहां जो रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस की जो हम बात कर रहे हैं, ये थर्मल रेजिस्टेंस भी इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, किस टाइम के लिए दिया जा रहा है, या हीट कितना फ्लो हो रहा है ना। आए और देखते हैं इसको कि किन बातों पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ लेट अस सी। Now, just see we have the formula of हमारे पास में एक फॉर्मूला था, उसका नाम क्या था, Q इज इक्वल टू के T1 माइनस T2 इंटू टी डिवाइड बाय ए। ये जो हमने डेरिवेशन किया था स्टार्टिंग में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, वहां पे हमने ये देखा था कि कौन कौन फैक्टर्स हैं ऐसे, है ना, जो अफेक्ट करते हैं हीट को। तो ये फैक्टर्स सारे निकले थे हमारे पास में। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी एंड कांस्टेंट विल डिपेंड अपॉन द कांस्टेंट, एंड टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, कितने टाइम के लिए हीट फ्लो हो रही है उस पर डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या है उस पर डिपेंड करेगा, समथिंग लाइक दिस, है ना। ये हमारे पास में यहां पे आ जाएगा ए अपॉन एल। गलत लिखा मास्टर, फॉर्मूला अब सही है ना। दिस इज द राइट फॉर्मूला बच्चा, दिस इज द राइट फॉर्मूला। किस एक और फॉर्मूला जो अभी हमने निकाला वो क्या था, थर्मल रेजिस्टेंस का। और थर्मल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकाला वो क्या निकाला, T1 माइनस T2 इंटू टी डिवाइड बाय, किस पे डिपेंड करता है बेटा, ओ डिवाइड में क्या आता है, Q। अब यहां से आप देखिए, ये मेरे पास में Q है, क्या यहां से Q की वैल्यू निकाली जा सकती है, यस सर। Q इज इक्वल टू क्या जाएगा, T1 माइनस T2 इंटू टी डिवाइड में ये रिप्लेस। ओके, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, R। जस्ट कैन आई पुट दिस वैल्यू ऑफ Q हियर, यस सर बिल्कुल पुट कर सकते हैं सर। क्या मिलेगा हमें, क्या मिल जाएगा, T1 माइनस T2 इंटू टी डिवाइड बाय R इज इक्वल टू के T1 माइनस T2 इंटू टी इंटू ए डिवाइड बाय L, डिवाइड बाय L। तो दिस T1 माइनस T2 ने इस T1 माइनस T2 को मार दिया, इस T ने इस T को मार दिया, और क्या बचा हमारे पास में, सर हमें तो रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस के उन फैक्टर्स पे के बारे में पता करना है जिन पर वो डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली R। सो दिस इज 1 बाय R ओवर हियर, दिस इज व्हाट बेटा, के ए अपॉन एल। R चाहिए ना, इसे रिवर्स कर दो, इसे रिवर्स कर दो, इसे रिवर्स कर दो, क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू एल अपॉन के ए, R इज इक्वल टू एल अपॉन के। ये वो फैक्टर्स हैं जिन पर थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फर्स्ट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ बढ़ेगी तो थर्मल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, अगर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। थर्ड वन, इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, थर्मल रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। ये वो फैक्टर्स हैं। आई होप समझ में आया होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से थर्मल रेजिस्टेंस को डिराइव किया, उसका फॉर्मूला देखा, उसकी यूनिट देखी, उसकी डायमेंशन देखी, फैक्टर्स देखे जिन पर वो डिपेंड करता है, लेंथ पर करता है, एरिया पे करता है, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। आया समझ में, ओके। अब नेक्स्ट है, आगे चलते हैं, दैट इज व्हाट, आइसोथर्मल सरफेस। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, आइसोथर्मल सरफेस। चलिए इसको रफ करते हैं फटाफट। आइसोथर्मल सरफेस। सो आइसोथर्मल मीन्स क्या समझ में आया, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल सरफेस, आइसोथर्मल सरफेस, सरफेस, आइसोथर्मल सरफेस।
आइसोथर्मल सरफेस इसका मतलब एक ऐसा सरफेस जिसका टेम्परेचर या ऐसे सरफेसेस जिनका टेम्परेचर सेम हो, जिनका सेम टेम्परेचर हो। ओके, मगर क्या कंडीशंस, कैसे होंगे वो, कैसे वो दिखते होंगे, उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो हम देखेंगे इसमें, है ना। तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं फटाफट, आ जाइए चिपकाते हैं। हम लिख सकते हैं द सरफेसेस नॉर्मल और परपेंडिकुलर, सो सरफेसेस नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, है ना। द सरफेसेस नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, है ना, आर कॉल्ड isothermal surfaces where temperature at every point is same. ओके सर। सो बड़ी लंबी सी डेफिनेशन है ना, आ जाइए, सब कुछ इसी के अंदर है, इसको समझेंगे। तो हमारे पास तो सर क्या होती है, हमारे पास तो एक रॉड होती है, फटाफट एक रॉड बनाएंगे, जल्दी आ जाओ। कंडक्टिंग रॉड, समथिंग लाइक दिस। हाँ सर, बहुत बढ़िया। यहां से दी आग, रामू की आग, यहां से दी आग, क्या दी, आग, और आग मतलब हीट दी, तो क्या हो गया भाई साहब, टेम्परेचर T1, यहाँ पे टेम्परेचर T2, T1 ग्रेटर देन T2, एंड फिर क्या हो जाएगा, हीट फ्लो होगा। क्या होगा, हीट फ्लो होगा। ओके सर, हीट विल फ्लो, क्यू विल फ्लो, अच्छी बात है। अगर इस डेफिनेशन को देखा जाए तो क्या बोल रहा है, सरफेसेस नॉर्मल और परपेंडिकुलर to the direction of flow of heat. If the heat is flowing in direction, like suppose from T1 to T2 or from region A to B, heat is flowing from left to right. So this is the direction of flow of heat. है ना, heat is flowing from A to B. If heat is flowing in this direction, then according to this definition, the surfaces must be perpendicular. तो एक surface ऐसा मान लिया, दूसरा ऐसा मान लिया, है ना, ऐसे हो सकते हैं। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं, बिल्कुल। तो ये देखने में आएगा कि आपको यहाँ पे कि ये जो सरफेसेस हैं, क्या ये नॉर्मल है? यस सर, क्योंकि हीट जा रही है ऐसी, और सरफेसेस ऐसे बने हुए हैं, परपेंडिकुलर, है ना। तो ये बात तो समझ में आई कि इस रॉड को, कंडक्टिंग रॉड को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करें, अगर बहुत पतले रीजन्स में भी डिवाइड करें, जितने कर सकते हो आप, तो हर एक रीजन क्या होगा, आइसोथर्मल सरफेस होगा। क्या होगा, आइसोथर्मल सरफेसेस हो गया। तो ये मेरे पास में S1, S2, S3, S4, ये सारे सरफेसेस क्या है, आइसोथर्मल सरफेसेस हैं। और क्या लिखा है आगे, आर कॉल्ड आइसोथर्मल सरफेसेस वेयर द टेम्परेचर एट एवरी पॉइंट इज सेम। वेरी गुड, वेयर द टेम्परेचर एट एवरी पॉइंट इज सेम। जस्ट सी, वेयर द टेम्परेचर एट एवरी पॉइंट, मतलब कि ये जो आपका सरफेस है ये वाला, इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सारे पॉइंट्स जो होंगे वो सेम टेम्परेचर पे होंगे। जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स सेम टेम्परेचर पे होंगे बेटा। कैसे होंगे, सेम टेम्परेचर पे। वहीं S2 पे भी जितने पॉइंट्स होंगे, हर एक पॉइंट सेम टेम्परेचर पे, सारे के सारे सेम टेम्परेचर पे होंगे, जितने भी हैं, S1, S3, S2, S4, आगे चले जाइए, सारे के सारे सेम टेम्परेचर पे होंगे। मगर एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, ये समझेंगे। कंडीशन क्या है,
ये कंडीशन है द टेम्परेचर बड़े बड़े अक्षरों में लिखूं ताकि दिखे आपको। द टेम्परेचर ऑफ एवरी isothermal surface will be different। यस, हर एक आइसोथर्मल का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, है ना। मतलब कि S1 का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ S1 will not be equal to the temperature of S2 will not be equal to temperature of S3 and so on। हर एक जो सरफेस है वो आइसोथर्मल है, उस पर जितने पॉइंट्स हैं उन सब का टेम्परेचर सेम होगा, मगर जब एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे आप जाएंगे तो टेम्परेचर सेम नहीं होगा। आई ये बात समझ में? तो ये सब रिलेटेड था आपके आइसोथर्मल सरफेस से, है ना। तो एक कंडक्टर है, हीट फ्लो हो रही है उसमें, उसे आइसोथर्मल सरफेस कैसा बोला जाएगा, इसके बारे में बताया। अब आगे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट, उसे देखते हैं। आइए, टेम्परेचर ग्रेडियंट, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। सो व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूमेरिकल आएंगे, करेंगे बिल्कुल इस पे बेस्ड। टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या बोलता है ये समझेंगे। द चेंज in temperature of isothermal surfaces, है ना, और when moving along the direction of flow of heat per unit distance is called temperature gradient। आया समझ में? नहीं आया? आओ देखते हैं, कोई बात नहीं। द चेंज इन टेम्परेचर, पहली बात तो चेंज होगा टेम्परेचर में बिल्कुल ऑफ आइसोथर्मल सर्फेसेस, जैसा कि अभी पढ़ा, आइसोथर्मल सर्फेसेस में चेंज होगा। और आ जाए बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है दैट इज व्हाट? टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या है टेम्परेचर ग्रेडियंट? फटाफट हेडिंग लगाते हैं, दैट इज व्हाट? टेम्परेचर ग्रेडियंट। यस, टेम्परेचर ग्रेडियंट आ जाए, बहुत बढ़िया सर। टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को समझे कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है। इसकी डेफिनेशन, द चेंज इन टेम्परेचर while moving along the direction, or the change in temperature along the direction, moving no, इसमें लिख सकते हैं अपन along the direction of flow of heat, आ जाए फटाफट, है ना। दैट इज कॉल्ड विथ पर यूनिट डिस्टेंस। नाउ इट इज कंप्लीटेड। सो द चेंज इन टेम्परेचर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट डिस्टेंस, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो एक कंडक्टर चाहिए जिसमें हीट फ्लो कर सके, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो माना कि यहां पे हम लोग दे रहे हैं आग, और वो क्या है? रामू की आग है। क्या है? रामू की आग है। तो यहां पे जब हीट दी, क्या दी? हीट। तो इसका टेम्परेचर T1 हो गया। लेटेस्ट से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B,
then the temperature will become B side is T2. जहां पे हीट दी जाती है, हायर टेम्परेचर होता है, हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ कुछ क्या इसी डायरेक्शन में जाएगी? यस सर, ओके, बहुत बढ़िया. सो लेट अस से द टेम्परेचर हियर इज T नाउ एंड एट दिस पॉइंट आई एम टेकिंग अनदर सरफेस. हाँ, इतने डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? यहां से एक डिस्टेंस ले लिया आपने डेल एक्स. क्या ले लिया? डेल एक्स. तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया? चेंज इन टेम्परेचर आया डेल टी. चेंज इन टेम्परेचर कितना आया? डेल टी. इसी के हिसाब से समझे तो चेंज इन टेम्परेचर अलोंग द डायरेक्शन पर यूनिट डिस्टेंस. ओके, सो व्हाट कैन आई राइट? डेल टी अपॉन डेल एक्स. ओके, दिस इज द रेशियो. डेल टी अपॉन डेल एक्स, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस. अब ये बात समझ में आती है, आप बहुत ध्यान से देखिए कि जो हीट फ्लो होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होती है. हायर जो हीट होती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ आती है. तो इसका मतलब कि अगर डेल टी चेंज आ रहा है टेम्परेचर में, तो क्या वो चेंज नेगेटिव होगा क्योंकि टेम्परेचर नेगेटिव होगा? यस सर, टेम्परेचर नेगेटिव होगा. तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या है? टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है बेटा? माइनस डेल एक्स बाय डेल टी. माइनस डेल एक्स बाय डेल टी. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, नाउ यूनिट. टेल मी व्हाट इज द यूनिट? यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट क्या होगी? यस, यूनिट की अगर अपन बात करें तो हमारे पास में एसआई यूनिट है. एसआई यूनिट में अगर हम बात करें टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? जल्दी से बोलेंगे. केल्विन. टेम्परेचर के लिए हम लोग केल्विन लगा सकते हैं. यस सर. और यहां पर अगर हम बात करें ये डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा? मीटर में, है ना? इसको ऐसा लिख लीजिए या फिर इसको ऐसा लिखिए, क्या मीटर इनवर्स. ओके, सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? केल्विन सेंटीमीटर या फिर केल्विन सेंटीमीटर इनवर्स. आ जाओ, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला. यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? यस, टेम्परेचर के लिए केल्विन लगता है. मास है क्या? नहीं है सर, 0 एम. एल है क्या हमारे पास में? लेंथ है क्या बेटा? यस, डिस्टेंस है तो एम एल. डिनोमिनेटर में ऊपर गया तो -1 एम एल टी. टी स्टैंड्स फॉर टाइम. टाइम है क्या हमारे पास में? नहीं है. ओके, क्या हमारे पास में टेम्परेचर है? यस सर, केल्विन में. तो एम एल के. यस, कैन आई डू दिस समथिंग लाइक दिस? यस, मास 0, एल हमारे पास में -1, के और यह स्टैंड्स फॉर केल्विन. तो ये हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया. M0 L -1 K इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टेम्परेचर ग्रेडियंट. अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग, है ना? इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे और भी जो डेरिवेशन हमने की है उससे रिलेटेड उस पर न्यूमेरिकल करते हैं, है ना बच्चा? ओके बच्चा पार्टी. तो ये न्यूमेरिकल है हमारे पास में. दिस इज अ न्यूमेरिकल वी आर हैविंग राइट नाउ, दैट इज रिगार्डिंग द टेम्परेचर ग्रेडियंट. फटाफट क्या न्यूमेरिकल है देखते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं. इन द स्टडी स्टेट ऑफ टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ टू एंड्स ऑफ द रॉड, टेम्परेचर क्या दिए हुए हैं? ऑफ लेंथ 0.5 मीटर. सो लेंथ ऑफ द रॉड इज 0.5, दैट इज एल भी है यहाँ पे हमारे पास में. एल दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस. तो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ऐसा रॉड ले लो फटाफट. दिस इज द रॉड वी आर हैविंग. दिस इज टेम्परेचर T1, दिस इज टेम्परेचर T2. यहाँ पे अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है मतलब इस तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में सपोज करो हीट अप, वी आर हीटिंग दिस पर्टिकुलर रॉड फ्रॉम हियर ओनली. सो टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस एंड T2 कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस. T2, है ना? कैलकुलेट टेम्परेचर ग्रेडियंट. टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना है, टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना है. एल कितनी दी हुई है? 0.5. फटाफट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है माइनस डेल एक्स बाय डेल टी बाय डेल एक्स. सर ओके, सो बेसिकली डेल टी मस्ट बी T1 माइनस T2, है ना? डेल टी मतलब हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय डेल एक्स. अगर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो T2 माइनस T1 डिवाइड बाय डेल एक्स. T2 कितना है बच्चा? T2 कितना है मेरे पास में? 0. T2 कितना है? 0 माइनस 100 डेल एक्स कितना है? 0.5. तो कितना आ जाएगा? -100 डिवाइड बाय 0.5.
पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 पड़ जाएगा, नीचे 5, 5 2 जा 10, तो माइनस का 200 टेम्परेचर ग्रेडियंट माइनस का 200 अरे आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, डिग्री सेल्सियस पर मीटर, डिग्री सेल्सियस पर मीटर, अरे आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, टेम्परेचर ग्रेडियंट की यूनिट हो गई, यस सर, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। और न्यूमेरिकल्स देखते हैं बच्चा पार्टी। अब जो न्यूमेरिकल करना है बच्चा, अब जो न्यूमेरिकल करना है वो न्यूमेरिकल है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड। किस पे? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल से फटाफट देखते हैं, फटाफट। तो द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी ऑफ हॉट फूड इन अ कंटेनर ड्रॉप्स from 94 degree Celsius to 86 degree Celsius in 2 minutes. When the temperature of room is 20 degree Celsius, what time will it take to drop the temperature from 71 degree Celsius to 69 degree Celsius? So this question is based on Newton's law of cooling. First we should know that what is the formula of Newton's law of cooling. फटाफट, formula of Newton's law of cooling. Formula of Newton's law of cooling. आएंगे फटाफट जल्दी. What is the formula? Formula is T1 minus T2 divided by T is equal to K T1 plus T2 divided by 2 minus T0. T1 इनिशियल, सबको पता है इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर, एंड T0 इज सराउंडिंग टेम्परेचर। बता क्या चीज? सराउंडिंग temperature, and time is time, and K is what the coefficient of thermal conductivity we are having. आ जाए यहाँ पर क्वेश्चन देखें क्या लिखा है। द टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑफ फूड इन अ कंटेनर ड्रॉप्स फ्रॉम 94 डिग्री सेल्सियस टू 86 डिग्री सेल्सियस इन 2 minutes when the temperature of room is 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, बेसिकली इस क्वेश्चन को आप एक सिंगल क्वेश्चन की तरह ना देखें, बल्कि दो डिफरेंट या एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट्स की तरह देखें, तो आप पाएंगे कि यहां से यहां तक एक पूरा क्वेश्चन बन रहा है, और सेकंड क्वेश्चन यहां बन रहा है दैट व्हाट टाइम, यहां पे आपसे टाइम पूछ लिया है कि व्हाट टाइम इट विल टेक टू ड्रॉप द टेम्परेचर फ्रॉम दिस अगेन 71 डिग्री सेल्सियस टू 69 डिग्री सेल्सियस। So you can consider the 2 questions here. First question is this and second question is this. So you can consider 2 questions there, है ना। फटाफट आते हैं, पहले केस की बात कर लेते हैं, है ना, जल्दी से। पहला केस मतलब मार्कर गिर गया सर का, कोई बात नहीं। केस 1 बेटा, केस 1 फटाफट, केस 1। सो वी आर हैविंग इन केस 1 T1 मीन्स पहला टेम्परेचर हमारे पास में क्या है? 94 डिग्री सेल्सियस, है ना। और देन T2 क्या है हमारे पास में? T2 86 डिग्री सेल्सियस, एंड देन टाइम कितना बच्चा? 2 मिनट। टाइम कितना है? 2 मिनट। तो मिनट तो चाहिए नहीं हमें, सेकंड में चाहिए। ऐसा यूनिट में आंसर निकालेंगे, तो ऐसा यूनिट में जब आंसर निकालेंगे तो टाइम सेकंड में आता है। सो 2 into 60 सेकंड, तो क्या मिल जाएगा हमें? 120 सेकंड। ये टाइम हो गया हमारे पास में। और क्या चाहिए? T0 सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है बच्चा? रूम का टेम्परेचर। सराउंडिंग टेम्परेचर मतलब रूम का टेम्परेचर। कैसे देखेंगे? यहाँ पे 2 ही चीज तो थी हमारे पास में, एक हमारे पास में सिस्टम था, और सिस्टम के बाद में हमारे पास में सराउंडिंग थी। और सराउंडिंग क्या होती है? जो सिस्टम को इफेक्ट करे। सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे T1 से क्या जा रहा है? T2 जा रहा है। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? T0 है, 20 दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस। पुट इन दिस फॉर्मूला, T1 मीन्स व्हाट? 94 degree Celsius minus 86 numbers will take only, and 120 is equal to K. T1 means 94 plus 86 divided by 2 minus 20. Okay. So here what we will get? 14 minus 6, 8, 0 divided by 120, K, 94, 86, 10, 180 you will get from by 2, 20, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 4s are 2 5s are 10, and 2 1s are 2, 0. Something like this it will come, है ना। 2 5s are 10 and नहीं सर आपको डिवाइड नहीं आता। ओके,
सो 8 से डिवाइड करते हैं, सबसे इजी। 8 वन जा 8, 8 टू जा 10, ओ सॉरी 8 वन जा 8 अगेन, देन 4, 8 5 जा 40। आ गया सर 1/15। कितना? 1/15। कम हियर ऑल्सो। 2 9 जा 18, 90 माइनस 20 क्या देगा? 70। सो व्हाट यू विल गेट, k is equal to 1/15 into 70. This is the value of k. ये आपके पास में k की वैल्यू आ गई है ना, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं थी। अच्छी बात है सर। अब आगे चलते हैं, केस 2 की बात करते हैं। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन तो केस 2 से ही पूछा है ना। क्वेश्चन कहां से आया है? केस 2 से। केस टू क्या? सेकंड पार्ट क्या? व्हाट टाइम। तो यहां हमें टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। आएंगे फटाफट जल्दी यहां पर। अब बोल रहा है व्हाट टाइम, ठीक है, टाइम निकालना है हमें। विल इट टेक टू ड्रॉप द टेम्परेचर फ्रॉम 71 to 69। 71 इज योर टेम्परेचर T1 एंड 69 इज योर टेम्परेचर T2। बच्चा ये क्या है हमारे पास में? टेम्परेचर T2 है। फॉर्मूला लगाएंगे फटाफट, सेम फॉर्मूला है ना। सो T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T इज इक्वल टू K, T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2 माइनस T0। T1 इज व्हाट? 71 डिग्री सेल्सियस, T2 इज व्हाट? 69 डिग्री, डिवाइड बाय टाइम कितना लग रहा है? अरे यही तो पूछा है सर। K कितना था? अभी निकाला हमने, 1/15 इंटू 70। K की वैल्यू अभी निकाली थी। T1 71 प्लस 69 डिवाइड बाय 2 माइनस T0 और उस समय रूम का टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस है ना। T0 यहां से ले लेंगे फटाफट। 71 माइनस 69 कितना आ जाएगा? 2 डिवाइड बाई T इज इक्वल टू 1/15 इंटू 70। क्या मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर सकता हूं? 15 इंटू 70 है ना भाई, यहां मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे कितना मिल जाएगा आपके पास में? 10 9 1 10 एंड 6 6 12 13 130। अरे यही होगा क्या? नहीं सर, 9 1 10 1 7 1 8 8 140 डिवाइड बाई 2 माइनस 20 2 7 40 समथिंग लाइक दिस। देन 15 इंटू 70 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहां पे मेरे पास में कितना? 70 माइनस 20 50 इज इक्वल टू T। क्या मैंने सही किया? क्या मास्टर ने सही किया है? अरे बोलो यस सर। 5 3 जा 15, सो 3 2 जा 6 एंड 6 7 जा 42 डिग्री सेल्सियस। यस सर, ये टाइम लगेगा बच्चा, ये टाइम लगेगा। दिस इज द आंसर। तो 42 डिग्री सेल्सियस विल बी द आंसर। गेटिंग मी? यस। तो हमने एक न्यूमेरिकल देखा, दैट इज द एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है ना, विच इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आई होप समझ में आया होगा बच्चा। अब इसके आगे जो टॉपिक लेना है दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है ना। ये 3 टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, समझ में आना चाहिए हमको। ओके चलिए देखते हैं इसको। और अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कुछ गलती करिए। इस क्वेश्चन में जो आप यहां पर देखें, ये डिग्री सेल्सियस में क्यों आएगा सर? आप पागल हो गए क्या? टाइम पूछा है तो सेकंड में आएगा बच्चा। ये सेकंड में है। क्या है बेटा? सेकंड में क्या है? टाइम आया 42 सेकंड है ना। तो सॉरी फ्रॉम माय साइड कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ना। तो चलिए बच्चे, अब हम टॉपिक लगाएंगे हमारा कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, जो कि हमने 3 मोड पढ़े थे, देखें अभी जस्ट बताएं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। फटाफट इन 3 टॉपिक्स को लगाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। भाई किन, वो क्या तरीके हैं, वो तरीके कौन से हैं जिनसे हीट ट्रांसमिट होती है, तो यहाँ पे 3 तरीके हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट है ना। तो पहला मोड जो है हमारे पास में वो है कंडक्शन, सेकेंड वन इज कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन। सो देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फटाफट आते हैं, पहली बात करते हैं कि व्हाट इज कंडक्शन इज
है ना, व्हाट इज कंडक्शन, बिल्कुल समझेंगे। या फिर एक कंपैरिजन बनाते हैं, इनका एक कंपैरिजन बनाते हैं, उसके थ्रू आपको समझाता हूं, बहुत जल्दी समझ में आएगा, है ना। कंडक्शन, 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 कन्वेक्शन और रेडिएशन। चलिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये हमारे पास में 3 मोड्स हैं। कंडक्शन की अगर हम बात करते हैं, कंडक्शन की, तो पहली चीज, कंडक्शन इज द काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ हीट, काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ हीट विच टेक्स प्लेस इन द सॉलिड्स ओनली। तो पहली चीज, इट इज द ट्रांसमिशन of heat, transmission of heat in solids through vibration of molecules, फटाफट, बहुत बढ़िया सर। मतलब कि जो कंडक्शन है, कंडक्शन एक तरह का हीट ट्रांसमिशन का मोड है या तरीका है, जो कि किसमें काम करता है, वो काम करता है सॉलिड्स के अंदर। कि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो तो मुझे पता है कि पहले भी हम लोग डिस्कस करते हैं, सॉलिड के अंदर जो हीट का ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता है। और मॉलिक्यूल्स जितना ज्यादा वाइब्रेट करेगा उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा। यहाँ पे ये सेम चीज जो कंडक्शन बताई है उसी से रिलेटेड बताया हुआ है कि कंडक्शन जो है वो मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के कारण होता है। एक मॉलिक्यूल अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा, जितना तेज वो वाइब्रेट करेगा उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा। वो सेम वाइब्रेशन की एनर्जी जो है वो बाजू वाले को ट्रांसमिट कर देगा, बाजू वाले मॉलिक्यूल को वो स्टार्ट करेगा वाइब्रेशन, उसके बाजू वाले को देगा। ये वाइब्रेशन जो है, इन्हीं वाइब्रेशंस के थ्रू जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है वो हीट की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है सॉलिड्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन, है ना। तो बेसिकली कंडक्शन किसके लिए डिफाइंड है, सॉलिड्स के लिए, उनमें ट्रांसमिशन। यहां पे कन्वेक्शन की अगर बात करें, कन्वेक्शन इज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन लिक्विड्स, ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन लिक्विड्स और गैसेस। या हम दोनों के लिए बात करें कि क्या हो जाएगा, फ्लूइड्स के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है बेटा, फ्लूइड्स में। तो फ्लूइड्स में दोनों चीजें आती है, लिक्विड भी आता है और गैस में आता है। तो यहां पे होती है बाय एक्चुअल मोशन या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो किनके कारण होती है, यहां पे किनके कारण होती है। आप देखें, कन्वेक्शन जो होगा वो फ्लूइड्स में है। फ्लूइड्स में हीट ट्रांसमिशन का एक तरीका है, फ्लूइड्स के अंदर हीट के मूवमेंट का एक तरीका है। इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। किसमें, फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स में दोनों चीजें आएंगी, सॉलिड भी आएगा, लिक्विड भी आएगा। अब जैसा कि यहां पे देखा था, कंडक्शन में वाइब्रेशन जो हो रहा था, मॉलिक्यूल्स में एनर्जी कैसे ट्रांसमिट हो रही थी, वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसमिट हो रही थी। क्या मॉलिक्यूल्स ट्रांसमिट कर रहे थे, नहीं। मगर कन्वेक्शन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खुद मोशन करते हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, है ना। सो दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ मूवमेंट विच टेक्स प्लेस, और मोशन ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के कारण होता है ना। किसमें, सॉलिड्स में और लिक्विड्स में। अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाए यहां पे, रेडिएशन, ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्लो। इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्लो। किसमें होता है भाई, ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्लो। बेसिकली अगर हम इस बात करें ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्लो, नाउ हियर इन केस ऑफ थर्मल एनर्जी, इन केस ऑफ रेडिएशन, basically radiation is the emission of thermal radiation from the body, emission of thermal radiation from the body, or emission of thermal energy from the body is called radiation, है ना। it is not only defined for solid, liquid or gases, any body, कोई भी ऐसी बॉडी जो थर्मल एनर्जी, here we are restricted with thermal energy or heat, that is why I am using the term thermal energy। हर वो बॉडी जो जीरो केल्विन से ऊपर है, उसके पास अपना एक सर्टेन टेम्परेचर होगा, तो वो थर्मल एनर्जी को रेडिएट करेगी, एमिट करेगी, है ना। तो इस तरह का रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल रेडिएशन बोलते हैं या फिर रेडिएशन बोलते हैं, है ना। सो बॉडी, द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्लो इन द फॉर्म ऑफ
radiation, and here in this case or here in this case thermal energy, है ना, वो क्या कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। यहां पे आ जाते हैं फटाफट। यस, इट रिक्वायर्स मीडियम, इट रिक्वायर्स मीडियम, यहां पे मीडियम की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर द फ्लो ऑफ हीट। दिस कन्वेक्शन इट ऑल्सो रिक्वायर्स, it requires medium, also it requires medium for flow of heat. It doesn't require medium, it doesn't require medium। बच्चा पार्टी, इसे जरूरत नहीं पड़ती मीडियम की फ्लो होने के लिए। थर्मल एनर्जी को जब रेडिएट करती है बॉडी, अगर एमिट करती है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लू, यहां पे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, दैट इज सन। सन इज द बिग सोर्स ऑफ थर्मल रेडिएशन। तो पहले से ही हमें पता है बहुत टाइम से, है ना, कि जो यूनिवर्स है वो वैक्यूम है। क्या वहां मीडियम है? तब भी सन की जो लाइट है वो अर्थ पे आती है ना। तो वहां से जो आती है लाइट, जो आती है, दैट इज अ काइंड ऑफ थर्मल रेडिएशन। इट इज कमिंग टू अर्थ ना, विदाउट एनी मीडियम। तो मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। यस, यहां पर मीडियम जो है, मीडियम गेट्स हीटेड, वो मीडियम ही गर्म हो जाता है, मीडियम ही गर्म हो जाता है ना। यहां पर भी तो मीडियम गेट्स हीटेड। यहां पे मीडियम हीट नहीं होता है, यहां पे मीडियम गर्म नहीं होता है, मीडियम गर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल यहां पे लिख दिया सन, और मीडियम does not get heated, है ना। मीडियम गर्म नहीं होता है, यहां पे आ गए। और इसमें हम लोग क्या चीज ऐड कर सकते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। सॉलिड में हो गया, मीडियम हीट नहीं होता है। उसके बाद में इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर द फ्लो ऑफ इट। यस, हाँ, यहां पे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जो पाथ होता है, पाथ ऑफ फ्लो ऑफ हीट, पाथ ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज जिगजैग। कैसा भी हो सकता है, आड़ा तिरछा, कैसे भी हीट फ्लो कर सकती है, किसी भी डायरेक्शन को लेकर के हीट फ्लो हो सकती है। यहां भी पाथ ऑफ हीट फ्लो इज जिगजैग। आड़ा तिरछा कैसे में भी जा सकती है ना, मॉलिक्यूल्स हैं भाई, उन कैसे भी जा सकते हैं, तो हीट भी कैसे भी जा सकती है। नाउ हियर रेडिएशन, इन केस ऑफ रेडिएशन, the flow or the path of flow is straight line. Yes, this is very important, straight line, because very easily we can understand this, how the path of radiation is straight line. सन की जो रे होती है ना, हम लोग बचपन में भी अगर बनाते थे सूरज को, है ना, सूरज चाचा को, क्योंकि चंदा मामा है, तो हम कैसा बनाते थे, जरा रेस देखो। क्या हम लोग स्ट्रेट लाइंस बनाते थे? यस, स्ट्रेट लाइंस बनाते थे। तो ये जो लाइट है, इट इज अ काइंड ऑफ थर्मल एनर्जी, इट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। जो रे है, रे का ये प्रॉपर्टी, अगर आप लाइट है, लाइट को डुअल नेचर बनाया जाता है। इसके पास में वेव प्रॉपर्टी है और रे प्रॉपर्टी है। इफ वी आर कंसिडरिंग रे प्रॉपर्टी, अगर हम रे प्रॉपर्टी को कंसिडर करेंगे, तो रे की एक क्वालिटी होती है दैट इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दैट इज व्हाट वी आर टेकिंग हियर, द पाथ। इफ द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, देन वी कैन कंसिडर दैट द रेडिएशन और द थर्मल एनर्जी विल ऑल्सो रेडिएट इन द स्ट्रेट लाइन, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप समझ में आया होगा आज जितना भी टॉपिक कवर किए बच्चों, है ना। चलिए, ओके, पढ़ाई करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।